ہے کہ جہاں تو ہے کون جانے تجھے کہاں تو ہے. آئیے اس ٹرانسمیشن کو اور نکھارتے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ. تمام میسیجز ہیں کس طرح سیدنا علی حیدر کرار نے اور کس طرح بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے گھر میں اپنے بچوں کی تربیت کی کہ بچوں نے پھر پورے زمانے کی تربیت کی. ڈاکٹر بننا آسان ہے، انجینئر بننا آسان ہے جی. انہوں نے فرمایا حتیٰ عالم بننا آسان ہے، انسان بننا مشکل ہے. قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر میرا شکر ادا کرو گے تمہیں اور نعمتوں میں اضافہ کروں گا. رمضان ٹرانسمیشن کے کسی بھی دن یہ اناؤنس کر سکتے ہیں کون سی سپر بائک کب کس کے نصیب میں جانے والی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوه بكرة وأصيلا والذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. آمنت بالله صدق الله العظيم. بسم الله. سبحان اللہ سبحان اللہ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خواتین و حضرات آپ سب کو، رحمانی بھائی کو، حاضرین کو، ناظرین کو اور جن لوگوں کی دعائیں ہمارے ساتھ ہیں ان سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. شروع کرتے ہیں رب تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. آج 13 رمضان المبارک ہے 1438 ہجری. دن ہے آج جمعہ کا دوسرا جمعہ 9 جون 2017 اور 13 رمضان کو پچھلے سال امجد بھائی ہمارے ساتھ 14 رمضان کو ساتھ، 15 رمضان کو ساتھ اور 16 کو وہ جنتیوں کے ساتھ. دن قریب آ رہے ہیں ان کے جانے کے، تو ہم وقفے میں ہر بریک میں ہم آپس میں کوئی نہ کوئی بات، اس دن یہ ہوا تھا، اس دن یہ ہوا تھا، اس دن یہ بات ہوئی تھی، اس دن یہ بات ہوئی، اس دن میں آیا تھا رحمانی بھائی، اس دن میں آیا تھا ڈاکٹر صاحب، اس دن میں نے وہ علاج بتایا تھا، تو کہہ رہے ہیں ارے میں اپنی بہن سے کرواؤں گا، میں کرواؤں گا، تم مجھے بتاؤ کیسے کرنا ہے. کیا کیا واقعات. رمضان مبارک کا دوسرا جمعہ خواتین و حضرات، پہلا جمعہ دوسرا جمعہ آ گیا حضرت. ماشاءاللہ یہ خوش نصیبی ہماری ہے کہ دوسرے عشرے یہ پہلا جمعہ ہے اور رمضان کا یہ دوسرا جمعہ ہے. دوسرا یہ دوسرے یہ عشرہ ہے 11 سے 20 تک جو عشرہ مغفرت ہے اس کا یہ پہلا جمعہ ہے، پہلا جمعہ ہے ماشاءاللہ. اور رمضان مبارک کا یہ دوسرا جمعہ ہے. جمعہ ہے. اور اس جمعے کی فضیلت، ہر جمعے کی فضیلت یہ ہے کہ اس میں جو شخص 80 مرتبہ درود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتا ہے تو اللہ اس کے 80 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے ماشاءاللہ. اور جو شخص سورہ یاسین کی تلاوت اپنے والد اور والدہ کی قبر پہ جا کے پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ پڑھنے والے کی بخشش و مغفرت کر دیتا ہے. اللہ. اور اس جمعے کے اندر یہ کچھ ساتیں ایسی ہوتی ہیں آپا کہ عصر کی نماز سے پہلے یا عصر کی نماز کے بعد کہ جو دعائیں مانگی جائیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول فرماتا ہے. اور جب نماز جمعہ ادا کی جا رہی ہوتی ہے، جو علامہ صاحب مفتی صاحب جو بیان کر رہے ہوتے ہیں، خطبہ جو ہے جمعہ پڑھتے ہیں، اس کے درمیان جو بیٹھتے ہیں پھر اٹھتے ہیں، اس علماء لکھتے ہیں کہ اس وقت بھی جو دعائیں مانگی جائیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول فرماتا ہے.
اور جو شخص اعتکاف کرتا ہے اس نیت سے، یعنی کہ جمعے کے دوسرے ہر جمعے کو جائے شخص، اور تو وہ کوشش یہ کرے کہ فجر کی نماز سے عصر کی نماز تک ماشاءاللہ سنت اعتکاف کر لے، تو جو اس طرح بیٹھے گا آسمان سے فرشتے اترتے ہیں اور اس کا دیدار کرتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہتے ہیں نا کہ نیت کتنی بھی اچھی ہو، دنیا تمہارے دکھاوے سے تمہیں جانتی ہے۔ ہم کتنا کچھ بدلتے ہیں۔ بڑی پیاری بات یہاں پر لکھی ہے، انسان بزدل اتنا ہے کہ خواب میں ڈر جاتا ہے، اور بے خوف اتنا ہے کہ جاگتے میں بھی اپنے رب سے نہیں ڈرتا۔ انسان مکان بدلتا ہے، کپڑے بدلتا ہے، لباس، تعلقات، جگہیں بدلتا ہے، نہیں بدلتا تو اپنا رویہ نہیں بدلتا۔ صحیح بات ہے۔ ہم اتنے نڈر ہو چکے ہیں کہ آپ کے بارے میں پیٹھ پیچھے بات کرنے سے میں گھبراؤں گی نہیں، کر جاؤں گی۔ آپ سامنے آئیں گے تو شاید میں گھبرا جاؤں، اور جو میری ہر نیت سے واقف ہے، میری ہر ارادے سے واقف ہے، مجھے اسے ڈر نہیں لگتا۔ آپس میں ایک سب سے بڑا کاز یہ ہے کہ ہم نا بائی برتھ مسلم ہیں، ہم ذہنی فکری طور پہ مسلمان ابھی تک بنے نہیں ہیں، بائی نرچر نہیں ہے۔ ہاں وجہ اس کی اگر ہم یہ بن جائیں تو ہمارے ذہن میں ایک بات یہ ہوگی، جس طرح ہم نے کل جس نقطے پہ ختم کیا تھا اپنا پروگرام، یاد ہے نا، کہ بالکل اللہ بالکل، تاک لگا کر اللہ تاک لگا کر بیٹھا ہے، تاک لگا کر ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ ہم سوچ لیں، ارے ہم بول رہے ہیں اللہ تو ہمارے دل کا حال علیم بذات الصدور، جو ہمارے دل کے اندر ہے پروردگار وہ جانتا ہے۔ اف، ہم یہ بات اگر دو لمحے کے لیے بخدا دل سے ایک سیکنڈ کے لیے ذرا آنکھ بند کر کے سوچیں، یار میرا رب ابھی میں کس نظر سے دیکھ رہی ہوں، مایا دیکھ رہا ہوں، یہ پروگرام دیکھ رہی ہوں، کس نظر سے، کس نیت سے مجھے معلوم ہے، لیکن میرے علاوہ میرے رب کو معلوم ہے میں کس نیت سے یہ سارا پروگرام دیکھ رہی ہوں۔ دعا سے دیکھ رہی ہوں، اچھائی میں دیکھ رہی ہوں۔ کیا ہم ایسے دیکھ رہے ہیں پروگرام کہ ہاں یہ ہمارا اپنا پروگرام ہے، یا میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ اب دیکھتی ہوں ایسے کپڑے کیسے پہنے ہیں، لگ رہی ہے، پروگرام کتنا بکواس ہے، ایسی چیزیں۔ اب یہ نیگیٹیوٹی سب سے پہلے اللہ تعالیٰ جو آپ جو بات کریں نیگیٹیوٹی کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اس نیگیٹیوٹی کو ہم حسد کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس دل کے اندر یا تو ایمان رہے گا یا پھر حسد رہے گی۔ اگر حسد آ گیا تو ایمان چلا گیا، اور جب ایمان آ گیا تو پھر حسد چلی جائے گی۔ میں آپ وقفے کے بعد میں حضرت سے بھی پوچھوں گی، میں آغا بھائی سے بھی پوچھوں گی، ڈاکٹر ام راہیل سے بھی پوچھوں گی کہ مجھے کوئی ایسا طریقہ آپ لوگوں نے بتانا ہے جس سے میں حاسدین سے بچ سکوں۔ بہت اچھا سر آپ کی بات سے ہوا یہ رحمانی بھائی، ایک دم سے کلک ہوا۔ آپ لوگوں میں سے کون کون اتفاق رہتا ہے اس بات سے کہ اللہ پاک ہمیں ہر 2 منٹ پہ لگتا ہے نظر لگ گئی، یا میں نے کپڑے پہنے اس نے حسد کی نظر سے دیکھ لیا، یا نہیں میں اس سے اپنی چیزیں چھپا لوں، وہ دیکھے گی تو کچھ نہ کچھ ہو ہی جائے گا الٹا۔ تو ایسا ہوتا ہے نا؟ بالکل ہوتا ہے۔ تو میں اپنے لیے طرف سے پوچھوں گی تو آپ لوگ بھی ساتھ ساتھ اپنے حوالے سے جو پرٹیکولر اسپیسیفک کہ مجھے اس شخص سے ڈر لگتا ہے کہ شاید وہ جب آتا ہے یا وہ آتی ہے یا وہ فیملی آتی ہے مجھے ڈر لگتا ہے، مجھے کوئی ایسی دعا بتا دیجئے، مجھے کوئی ایسی چیز بتا دیجئے تاکہ میں ان کی حسد کی نظر سے محفوظ رہ سکوں۔ نہ صرف حسد، کسی بھی حوالے سے۔ ہمارا وظائف کا سیگمنٹ خواتین و حضرات شروع ہونے کو ہے۔ اس وقفے کے بعد رمضان عشق کے نشریات میں آپ کی فون کالز، آپ لوگوں کے سوالات، جو سوالات کریں گے وظائف آپ کو یہاں سے ہمارے ایکسپرٹس بتائیں گے۔ ہمارے مفتی رحمانی بھائی، آغا بھائی اور ڈاکٹر ام راہیل آپ لوگوں کے ساتھ موجود۔ کل انہوں نے بلو لائٹ کے بارے میں بتایا تھا کہ بلو لائٹ اگر لگائیں تو پازیٹیوٹی ضرور ہوگی۔ وہ 0 واٹ کی جو بلبز باتیں ہیں اس میں بلو لائٹ بھی شاید اویلیبل ہے مارکیٹ میں۔ بلو ہوتی ہے اویلیبل؟ بلو ہوتی ہے نا؟ بلو ہوتی ہے تو وہ بلو لائٹ ان سے میں پوچھ لوں گی۔ کسی نے مجھ سے پوچھا کہ ان سے پوچھے گا کہ وہ بلو لائٹ ہم لگا سکتے ہیں جو 0 پاور کی آتی ہے، تو وہ بھی میں ان سے پوچھ لوں گی۔ اس وقفے کے بعد خواتین و حضرات یاد رکھیے رمضان عشق جاری ہے، لیکن نہ درود شریف کے بغیر بریک پر جائیں گے، نہ درود شریف کے بغیر بریک سے واپس آئیں گے۔ اور پڑھتے ہیں درود شریف میں، کہوں گی بھائی سے پڑھیے۔ میں تو پڑھتا ہوں بلغ العلا سبحان اللہ، کشف دجا بجمالہ حسن جمیل خصالہ صلوا علیہ
इख्तिलाफ से सिर्फ आग नहीं भड़कती, फूल भी खिल उठते हैं कि जो इख्तिलाफ जाती मुफाद से बढ़कर इज्तिमाई नफ़े की खातिर बुलंद होता है, कौमें उसी की रोशनी में आगे बढ़ा करती हैं और सर बुलंद होती हैं। मेरी कौम इस दुनिया में खूब सर बुलंद हो, ये मेरा मसला है जिसके हल की खातिर अरबाब इख्तियार के नाकिस फरमानों और फैसलों पर मेरा हाथ खुद ब खुद कलम की जानिब बढ़ जाता है और मैं लिखता हूँ इख्तिलाफी नोट। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट जुम्मा से इतवार रात 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस DNA। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शवाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के ज़माने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी ज़िंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा 8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा @8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका, कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास बात की किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा, इस मुल्क की तो यही स्टोरी है। जैसी करनी
वैसी भाई। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्जों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप ने अपनी औलाद को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानियां। एक दौर ऐसा भी आएगा कि एक शख्स अपनी वजारत उज़्मा बचाने के लिए पूरी दुनिया में अपने बच्चों को चोर, डाकू और लुटेरा कहलवाएगा। कुलभूषण यादव, आपने इंडिया का मंकी पकड़ा हुआ है, उसको दुनिया के आगे प्रेजेंट क्यों नहीं करते? UN में 14 साल बाद पाकिस्तान के किसी सरबराह ने खड़े होकर कश्मीर पे जोर मचाया। कुलभूषण का नाम नहीं लिया। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफ राय पीर ता जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लंदन, पेरिस, US में मालो महल बना ले, स्विस बैंक के खातों में अपना माल छुपा ले। बिल्कुल सड़कों पर लाके छिटा तो मेरा नाम शबाज शरीफ नहीं। वेरी फनी। इन वालों को गिरा दो। मेरे हुकूमत के रिंग पिस्टन बैठ गए हुए हैं। और कोई शर्म होती है और कोई हया होती है। लैपटॉप और मेट्रो बस की जमहूरियत है। देखिए क्योंकि जमहूरियत है हर जुमे की रात 11:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। इख्तिलाफ से सिर्फ आग नहीं भड़कती, फूल भी खिल उठते हैं कि जो इख्तिलाफ जाती मुफाद से बढ़कर इज्तिमाई नफे की खातिर बुलंद होता है, कौमें उसी की रोशनी में आगे बढ़ा करती हैं और सर बुलंद होती हैं। मेरी कौम इस दुनिया में खूब सर बुलंद हो, ये मेरा मसला है जिसके हल की खातिर अरबाबे इख्तियार के नाकिस फरमानों और फैसलों पर मेरा हाथ खुद ब खुद कलम की जानिब बढ़ जाता है और मैं लिखता हूँ इख्तिलाफी नोट। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट जुम्मा से इतवार रात 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD। एक बार फिर आपका हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। रमजान इश्क नशरियात आप देख रहे हैं 24 न्यूज़ पर, 24 न्यूज़ लाइव, 24 न्यूज़ HD लाइव पर आप देख रहे हैं हमें पूरी दुनिया में और पाकिस्तान में जहाँ जहाँ देखा जा रहा है। उन सब लोगों को, जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया है, उनको अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जो सेशन आप शुरू का मिस कर चुके, चले कोई बात नहीं, रहमानी भाई फिर दोहरा देंगे, लेकिन ये सेशन आपने मिस नहीं करना है। आगा भाई हमारे साथ आ चुके हैं, फोन कॉल्स के लिए नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। अल्लाह पाक का नाम लेकर हम शुरू करते हैं हमारा सेगमेंट। अस्सलाम वालेकुम आगा भाई, खैरियत से हैं? जुम्मा मुबारक। दूसरा आपको भी बहुत मुबारक हो, जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा, वक्फे पे जाने से पहले यहाँ पर मेरी बहुत सारी बहनें इस बात से इत्तेफाक करती हैं कि हमें कुछ ऐसी दुआएं पढ़ने की शदीद ज़रूरत है जिससे हम हासिदीन से बच सकें। ऐसा कोई इलाज होना बहुत ज़रूरत है, ऐसी कोई चीज़ रखना या ऐसी कोई चीज़ पढ़ना या ऐसी कोई चीज़ का विर्द रखना जिससे हम हासिदीन से महफूज रह सकें, क्योंकि आपको नहीं पता कब किसकी प्यार की, कब किसकी दुश्मनी की, कब किसकी हसद की नज़र आपको लग जाए और आपको। अच्छा, जब होता है तो ये मुझे ज़रूर शेयर करिएगा। मेरे साथ तो होता है, मैं तो रहमाने वाले शेयर कर देती हूँ, है भाई मेरा सर भारी हो रहा है, ये कनपट्टियाँ, स्पेशली कनपट्टियाँ भारी हो रही हैं, ये कंधे भारीपन महसूस होता है।
اچھا اور کسی کو لگتا ہے جب نظر لگ رہی ہو تو اور کچھ ان کو جو ہاتھ کھڑا کر رہے ہیں نا بس بھاگ کے میرا بچہ مائک لے کر. ویری گڈ ایکسلنٹ جی. وعلیکم السلام. میں نے معلوم کرنا تھا کہ میری بیٹی کی ابھی کچھ عرصے پہلے ڈیتھ ہوئی ہے. لوگ بہت میرے گھر پہ میرے بچوں پہ نظر رکھتے ہیں. ہمارے کھانے پینے پہ میری بیٹی 8 ایئرس کی تھی اور ابھی اسے 1 سال 5 منتھ ہوئے ہیں. تو لوگوں کی بہت نظر تھی کہ میرے بچے اچھے اسکول میں جاتے ہیں, اچھے کھاتے ہیں, اچھا پہنتے ہیں, اچھے مالس میں جاتے ہیں اور اینی ٹائم میرے گھر میں پکتا نہیں ہے, باہر سے ڈیلیں آتی ہیں اور میں اچھا پہنتی ہوں اور میرے بچے بھی اچھی جگہوں پہ مالس وغیرہ ڈالمن ہر جگہ. تو لوگ اس چیز پہ بڑا کہ بھائی تمہارے گھر میں تو بہت ہے, بھائی تمہاری تو بلڈنگ ہے, اس چیزوں پہ. اور ایک فیملی ایسی تھی جو ہمارا ہمیشہ پچھلے 1 سال سے پیچھا کر رہی تھی, جن کی خود کی 2 بیٹیاں اور 2 پیرنٹس. وہ اس لیے پیچھا کر رہے تھے کہ وہ کہتے تھے میری بیٹی کے اوپر جنات ہیں, دونوں بیٹیوں کے اوپر, اور یہ جنات جب جائیں گے جب کسی دوسرے بچے کے اوپر انہیں کرا جائے گا. تو انہوں نے ڈیلی میری بیٹی کو کال کرنا شروع کر دی ڈیلی کہ مسکان کیا کر رہی ہو, مسکان کیا کھایا, مسکان کیا پہنا, مسکان آج تم کہاں ملو گی. مجھے تھوڑا سا عجیب فیل ہونے لگا, ڈاؤٹ, کیونکہ مجھے بھی اس طرح کی چیزیں فیل ہو جاتی ہیں. میں نے اپنی بیٹی کو اس فون کال سے ہٹائی. میں اکثر کہتی نانی کیا ہے, یہاں گئیں گے وہاں گئیں گے, لیکن وہ مجھے ہمیشہ, میں جہاں جاتی تھی وہاں ملتی تھی بنا بتائے. وہ جب کہ آتی تھی بہادر آباد سے, وہاں بھی KFC ہے, وہاں بھی میک ڈونلڈ ہے, ہمارا ہر دوسرے تیسرے دن KFC میک ڈونلڈ جانا. تو وہ ہمیں ڈالمن مال میں بھی ہائپر میں مل رہی ہیں, وہ ہمیں KFC میں بھی مل رہی ہیں, وہ ہمیں میک ڈونلڈ میں بھی مل رہی ہیں. جس جگہ ہم جس پلیس جا رہے ہیں وہ ہم سے پہلے وہاں موجود. اور ہم لوگ پریشان ہوتے تھے کہ یہ کیا سلسلہ ہے. اور میری بیٹی رات کو اٹھ کے چلنا شروع کر دیتی تھی, دروازے تک جاتی تھی. میں نے اپنے ہسبینڈ سے کمپلین کی, انہوں نے نہیں یقین کیا. پھر ایک دن اچانک ہی میری آنکھ لگ گئی, میری بیٹی چل کے جا رہی, میرے ہسبینڈ نے آ کے مجھے اٹھایا کہ دیکھو تم وہ جا رہی ہے گھر سے نکل کے اور تم کیسی ماں سو رہی ہو. میں نے کہا ایسا کتنے بجے؟ میرے 3 بچے ہیں. نہیں, کتنے بجے کی بات ہے یہ؟ رات کے 3 بجے, 2:30 سے 2:45 کے درمیان. خود بخود اٹھ کے جا رہی, اٹھ کے خود بخود وہ چلتی تھی, آنکھیں اس کی پھٹی ہوتی تھی. میں نے خود کتنی دفعہ دیکھا, میں نے اسے مارا. میں نے کہا کیا کرتی ہو تم رات میں؟ پھر میں خود کچھ نہ کچھ پڑھتی رہتی تھی. میرے بیٹے کے اوپر بھی عمل ہوا تھا تو میں نے خود ہی ان جناتوں کو بھگایا تھا. میرے بیٹے نے دیکھا تھا باقاعدہ جنوں کو. تو میرے ہسبینڈ بھی ڈر گئے تھے, گھر سے چیزیں گرنا شروع ہو گئی تھی, دروازے وغیرہ بھی. تو میں نے پڑھانا شروع کرا. میں نے کہا میرے سامنے آؤ, جو بھی مسئلہ ہے میں حل کروں گی, یا تو میں گھر چھوڑوں گی یا آپ کو چھوڑنا پڑے گا, لیکن میرے بچوں کو ڈسٹرب نہیں کرنا. یہ چیزیں میرے بچوں کو تنگ کر رہی تھی. لیکن جب میری بچی کو وہ لاسٹ ٹائم ملے تو لاسٹ ٹائم میں یہ ہوا ہے کہ وہ 1 دن پہلے ان بچوں کے ساتھ کھیل کر آئی ہے اور دوسرے دن اس کے ساتھ حادثہ پیش آیا. اور حادثہ بھی کیسا کہ آپ لوگ سنیں گے, دیکھیں گے, رو پڑیں گے. میری بیٹی کو صرف یہ حصہ, جسم کا کوئی حصہ نہیں گیا تھا, ایک خروش, ایک کچھ نہیں تھا. اس کی رائٹ آئیز یہ نکل کر آ گئی تھی, لیفٹ یہ آ گئی تھی. اس کی بالکل چہرہ خراب ہو چکا تھا. میری بچی, میری میری بچی گاڈ گفٹڈ تھی. یا اللہ میرے مالک, اللہ, کبھی اس نے کسی کو تنگ نہیں کیا, کبھی کوئی فرمائش نہیں کی. ہمیشہ وہ رینک لے کر آتی تھی, بہت اچھی. اللہ میری بہن, اللہ میری بہن, جانے کا بہت, اللہ میری بہن, اللہ میری بہن, اللہ اللہ میری بہن. لیکن مجھے کیوں چھوڑ کے چلی؟ اللہ 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 اللہ. میرا دل نہیں مانتا, وہ جا چکی ہے. میرا دل نہیں مانتا. میں دن رات روتی ہوں, اسے ڈھونڈتی ہوں. اللہ, جس جگہ پہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے وہاں بھی جاتی ہوں. قبرستان بھی مجھے میری بچی کی قبر نہیں لگتی. میں بہت پریشان ہوں اپنی بیٹی کے لیے. میری بیٹی کہاں ہے, کیسی ہے, وہ مجھے میرے پاس ہی لگتی ہے. مجھے یقین نہیں آتا. میری بیٹی بہت بہت اچھی, جو بھی اس سے ملا اس نے تعریف کی ہے. اس کی پکس ان پہ نازک بچی, بہت اچھی, بہت. اللہ میری جان,
उफ, अल्लाह पाक रहम फरमा दे, अल्लाह पाक रहम फरमा दे अल्लाह। मैं लोगों की हसदों से तंग आ गई हूँ, अब भी पीछा नहीं छोड़ते, अब भी पीछा नहीं छोड़ते। अब मेरे बेटे की जान पे आए वक्त बनी रहती है, आए वक्त कुछ ना कुछ रहता है। मैं डरी रहती हूँ, हर वक्त डरी रहती हूँ कि मैं कहाँ तक पढ़ूं, कहाँ तक करूँ, मैं क्या करूँ, अपने बच्चों को इन लोगों की नजरों से कैसे बचाऊं। लोग कहते हैं कि तुम्हारे पास तो इतना है, तुम तो इतना है, तुम एक से एक करती हो, एक से एक खाती हो। तो मैं खाती हूँ तो अपने उसमें खाती हूँ, मैं किसी के आगे हाथ नहीं फैलाती, मेरे बच्चे जाके हाथ नहीं फैलाते। आप मुझे ये बताएं, इस तरह क्यों नहीं ये लोग पीछा छोड़ते, क्यों नहीं जीने देते? मेरी बच्ची चली गई इन लोगों की हसद में, मेरी बच्ची चली गई। मुझे क्या पता था, मुझे क्या पता था एक तड़पती हुई माँ बैठी है यहाँ पे। मैं अपनी बच्ची के लिए क्यों करूं? मैं दिन रात रोती हूँ, मेरी आंखों में जलन होती है, नजर नहीं आता। ये अल्लाह पाक रहम, मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड मुझसे तंगे के हर वक्त रोती रहती हो, हर वक्त रोती रहती हो, कभी तो खुश रहा करो, इतना कुछ है तुम्हारे पास। कैसे खुश रहे? उन लोगों को देखो जिनके पास कुछ नहीं है, फुटपाथों पे मुझे लोगों को दिखाते हैं। अब मुझसे कोई पूछे मेरा सीना जकड़ता है। मेरी बच्ची भूखी है जिसने 8 साल मेरे हाथों से खाया है, 8 साल मैं उसको इतना मारा कि अपने हाथ से खाओ, बड़ी हो गई हो, अपने हाथ से खाओ। ये मेरी 10 साल की बच्ची बैठी है, ये भी मेरे हाथों से खाती है। मेरा ऊपर बेटा बैठा हुआ है 6 साल का, वो भी मेरे हाथों से खाता है। नहीं खाएंगे तो मम्मा के हाथ से खाएंगे, वरना नहीं खाएंगे। पानी तक हर चीज मेरे हाथों से करते हैं। अब बताएं मैं उस बच्ची को कैसे भूल जाऊं, कैसे भूल जाऊं, कैसे मान लूं? वो मेरे पीछे बैठी हुई थी, पीछे। और आप बिलीव नहीं करेंगे, उस एक्सीडेंट को सोच नहीं सकते वो हुआ कैसे था। दरवाजे ऑटोमेटिक गाड़ी सिविक, दरवाजे लोग, शीशे लोग, और वो बंद शीशे से इस बच्ची के ऊपर से और बीच में बेटे के ऊपर से गई है बाहर। अगर कुछ था तो शीशे खुल लेते, दरवाजे खुल लेते। मुझे नहीं पता चला, मुझे नहीं पता चला। जब गाड़ी मेरी खाई में चली गई, मैंने हस्बैंड से कहा, उन्होंने मुझे कहा गाड़ी में थे आप लोग, सब लोग एक साथ थे, कार में थे, होंडा बैठो बेटा, इधर बैठो, जगह दे दो बहन इस बच्चे को। देख के परेशान है कि ये हुआ कैसे। ये अल्लाह पाक, किस तरीके से मेरी बेटी वेंट पे रही है, उसका चेहरा बदल गया। जितने लोगों को दिखाया रूहानी, सबने यही कहा कि ये बच्ची कुछ हुआ है, इसके साथ शैतानी ताकत है। मैं पढ़ती थी, उस बच्ची से पूछती थी कोई पास है, वो कहती थी, इशारा करती थी, और किसी से बात नहीं करती थी सिवाय मेरे। उसको नजर नहीं आता था, डॉक्टर कहते थे, लेकिन वो मेरे जाते ही फौरन बेताब हो जाती थी, हाथ पैर फेंकती थी और मुझे पकड़ती थी। 8-10 लोगों से, 6-7 लोगों से नहीं संभलती थी, लेकिन मैं वाहिद अकेली हाथ पैर खोल के उसको संभालती थी, और वो मेरी गोद में सीने से लग के खामोश हो जाती थी। उसने 35 दिन में, आप जियाउद्दीन चले जाएं, जियाउद्दीन नाज़माबाद वाले, केमाड़ी वाले, वो लोग बोल देंगे कि वाहिद बच्ची थी, पूरी खत्म थी, पूरी अंदर से। वो कहते हैं क्योंकि उसको एंटीबायोटिक दवाइयां दी जानी थी, जिसने उसे अंदर से खत्म कर दिया था, बिल्कुल खत्म। उसे खाना पीना कुछ नहीं दे रहे थे सिवाय दवाइयों के। तो वो बच्ची खत्म थी बिल्कुल। डॉक्टर कहते थे आप पैसा इस पे नहीं लगाए, फजूल खर्च कर रहे हैं, डेली के लाख रुपए आपके जा रहे हैं, आप इन बच्चों पे लगाए, इन पे करे। अब आप मुझे सच बताएं, मैं एक बच्ची को तड़पता हुआ जो उफ तक नहीं कर रही, जिस वक्त एक्सीडेंट हुआ वो मेरी गोद में सर रख के मुझे देख रही थी। उसने ना हाथ हिलाया ना कुछ, उसका मुंह बिल्कुल फ्लैट हो गया था, बिल्कुल फ्लैट। उसके, मुझे नहीं पता कि उसकी नाक कहाँ थी, बिल्कुल फ्लैट थी, सांस लेने की जगह नहीं थी, उसका मुंह बंद था, एक चुन्ना सा सुराख था। और मैं परेशान थी, मैं अपने बच्चों के बगैर कभी नहीं रही, कभी नहीं रही। मैं कह रही थी मैं मर जाऊंगी मुस्कान, मुझे नहीं छोड़ना। मेरी बहन प्लीज थोड़ा सा वक्फा ले लें प्लीज। अभी हम अभी आते नहीं जाना, थोड़ा सा, अल्लाह ना करे। कैसे मर जाएंगी यार, अल्लाह ताला मुझे उठा ले। नहीं, ना ऐसे नहीं कहते, कैसे जाएंगी यार,
इख्तिलाफ से सिर्फ आग नहीं भड़कती, फूल भी खिल उठते हैं कि जो इख्तिलाफ जाती मुफाद से बढ़कर इज्तिमाई नफ़े की खातिर बुलंद होता है, कौमें उसी की रोशनी में आगे बढ़ा करती हैं और सर बुलंद होती हैं। मेरी कौम इस दुनिया में खूब सर बुलंद हो, ये मेरा मसला है जिसके हल की खातिर अरबाबे इख्तियार के नाकिस फरमानों और फैसलों पर मेरा हाथ खुद ब खुद कलम की जानिब बढ़ जाता है और मैं लिखता हूँ इख्तिलाफी नोट। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट जुम्मा से इतवार रात 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस DNA। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शबाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के जमाने हुए। सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा @8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा @8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खू चुका। कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास बात की किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा, इस मुल्क की तो यही स्टोरी है। जैसी करनी
वैसी भर। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्जों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप ने अपनी औलाद को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानियां। एक दौर ऐसा भी आएगा कि एक शख्स अपनी वजारत उज़्मा बचाने के लिए पूरी दुनिया में अपने बच्चों को चोर, डाकू और लुटेरा कहलवाएगा। कुलभूषण यादव, आपने इंडिया का मंकी पकड़ा हुआ है तो उसको दुनिया के आगे प्रेजेंट क्यों नहीं करते? UN में 14 साल बाद पाकिस्तान के किसी सरबराह ने खड़े होकर कश्मीर पे जोर मचाया। कुलभूषण का नाम नहीं लिया। देखिए प्रोग्राम इख्तलाफ राय पीर ता जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। सड़कों पे लाके सीटा तो मेरा नाम शबाज शरीफ नहीं। वेरी फनी। इन ऐवानों को गिरा दो। मेरे हुकूमत के रिंग पिस्टन बैठ गए हुए हैं। और कोई शर्म होती है और कोई हया होती है। लैपटॉप और मेट्रो बस की जमहूरियत है। क्योंकि जमहूरियत है हर जुमे की रात 11:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। इख्तिलाफ से सिर्फ आग नहीं भड़कती, फूल भी खिल उठते हैं कि जो इख्तिलाफ जाती मुफाद से बढ़कर इज्तिमाई नफे की खातिर बुलंद होता है, कौमें उसी की रोशनी में आगे बढ़ा करती हैं और सर बुलंद होती हैं। मेरी कौम इस दुनिया में खूब सर बुलंद हो, ये मेरा मसला है जिसके हल की खातिर अरबाबे इख्तियार के नाकिस फरमानों और फैसलों पर मेरा हाथ खुद ब खुद कलम की जानिब बढ़ जाता है और मैं लिखता हूँ इख्तिलाफी नोट। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट जुम्मा से इतवार रात 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच। पूरा एक्सीडेंट हुआ। अच्छा सारा, अब ये बताइए, क्योंकि हम सब लाइव हैं, हम लोग ब्रेक में भी मैं सारा जी के साथ थी। बहन मुझे ये बताइए उस दिन क्या हुआ था, और क्योंकि इन्होंने जो मुझे बताया ये मैं अपने भाइयों से कहूँगी बहुत गौर से सुनिएगा कि इन्होंने जो मुझे अभी बताया है ब्रेक में, इतने बड़े एक्सीडेंट होने के बाद गाड़ी का एक शीशा खुला हुआ नहीं था, कुछ नहीं टूटा और बच्ची कोई दरवाजा नहीं खुला और बच्ची गाड़ी में से गायब होके एक्सीडेंट वाली जगह से जाके यहाँ पर खड़ी साबुत खड़ी हुई है अपने टांगों पर। ये क्या मामला है? मैंने सुने तो थे लेकिन इतने करीब से कभी मामला नहीं देखे। कोई चीज नहीं टूटी रहमानी भाई, कोई चीज नहीं टूटी। क्या पूछ रहे? वन स्क्रीन पूरी सही थी, वो सब सलामत था। मुझे बताएं अब एक्सीडेंट हुआ कैसे, ये बताइए जरा।
हम लोग निकले थे जाम शोरू के बच्चे, जब भी हमारे 2-3 दिन की छुट्टियां आती थी हम लोग कहीं ना कहीं आउट जाते थे लॉन्ग ड्राइव पर। उस दिन मैंने बच्चों को अचानक ही रात को सरप्राइज दिया कि सुबह हम जाएंगे। सुबह मेरा दिल नहीं था, बिल्कुल दिल नहीं था। मैं नहीं उठी 6 बजे, 5 बजे भी नहीं उठी, मैं 6 बजे भी नहीं उठी, 7 नहीं उठी, मैं फिर 7:30 उठी। मैंने बच्चों को तैयार किया कि मेरे बच्चे बहुत सैड हो जाएंगे, क्योंकि मैं बच्चों को सैड नहीं करती अपने। उठ के मैंने जल्दी जल्दी तैयारी की, हस्बैंड को उठाया, 8 बजे हम लोग जल्दी से निकले। जब गए रास्ते में एक्सीडेंट देखा, जो वो मैंने एक्सीडेंट देखा। कैसे हुआ एक्सीडेंट? कोई दूसरा हुआ था? वो दूसरा हुआ था। ठीक है। मैंने हस्बैंड को कहा कि मेरा दिल नहीं है, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, मुझसे बात नहीं करो, मुझसे हंसी मजाक नहीं करो। पूरे रास्ते मैंने बच्चों को भी डांटा करा। जब हम जाम शोरो पहुंचे, जाम शोरो पहुंच के हमने पेट्रोल अपना फुल करवाया, CNG फुल करवाई है, और ऑयल हस्बैंड ने चेंज करवाया है, और हवा भरवाई है टायरों में। तीनों गाड़ी में हाँ, पीछे? तीनों गाड़ी नहीं, ये लोग वॉशरूम उतर के गए थे। ठीक है। जब ये वापस आए हम लोग बैठे, 5 से 7 मिनट की हमने ड्राइव की है। वहाँ पे मेहरान यूनिवर्सिटी भी है, उससे आगे हम बढ़े, बिल्कुल सीधी सड़क है। बिल्कुल मैं बाद में दोबारा सब कुछ देख कर आई हूँ कि मुझे तसल्ली नहीं हो रही थी कि नहीं वहाँ ऐसा क्या था जिसकी वजह से हमारी गाड़ी पलटी है। बिल्कुल सीधे गाड़ी जाते जाते लेफ्ट पे गई है, वहां से कंटेनर आ रहा था। मेरे हस्बैंड मुझसे मजाक कर रहे थे, तो मैंने उनकी शक्ल देखी, उन्होंने फिर राइट लिया है, राइट पे भी खाई और कंटेनर। हस्बैंड ने वहां से घुमाई है गाड़ी, इतनी जबरदस्त तरीके से वो गाड़ी घूमी है कि वो बच्ची मेरी सीट से लग के बैठी थी, और ड्राइविंग सीट के पीछे ये बड़ी बेटी थी। फिर हाँ, मेरे बेटा बैठा हुआ था बीच में। रयान इधर आ जाओ बेटा। ये बीच में बैठे थे। हाँ। और वो अपनी छोटी कहाँ थी? वो मेरे बैक साइड पे। हाँ, मैं फ्रंट सीट पे थी। जब क्या कहते हैं, ये लोग आपस में लड़ रहे थे, इनकी लड़ाई भी खत्म हो गई। इनको खुद नहीं समझ आया कि इनके साथ हुआ क्या। ना हस्बैंड को आज तक याद है कि इन लोगों के साथ क्या हुआ, ना मेरी बेटी को कुछ याद है क्या हुआ, ना इनको याद है। लेकिन मुझे एक एक चीज याद है कि हो क्या रहा था। ये लोग वापस आए बाथरूम से? फिर जब घूमे नहीं, जब गाड़ी घूमी, उस घूमने में लोगों ने देखा कि हमारी गाड़ी जब घूमी है, 4 ईंटों की दीवार को पीछे डिग्गी ने तोड़ा है। उस दीवार को, ठीक है, वो टूटी है। उससे पहले, डिग्गी से टूटने से पहले, वो बच्ची मेरी बेटी और बेटे के ऊपर से जंप करती हुई निकली है। जब गाड़ी घूमी है, जंप करती हुई उछल के बाहर आई है। शीशे लोग, दरवाजा लोग, कुछ नहीं टूटा। और उसने गाड़ी की पिलर्स पकड़ लिए। जब उसने पिलर्स पकड़े, उसका सर जाके पिलर्स में लगा है। उसके नाम नीचे दरवाजे पे, जिस दरवाजे से निकली थी, उस पे अल्लाह का नाम आया खून से, और वो हवा में उड़ती हुई गई, बहुत दूर जाके सड़क पे खड़ी हो गई। जिन लोगों ने देखा, मैंने नहीं देखा, मेरे हस्बैंड ने नहीं देखा, लोगों ने वहां के बताया। फिर जब गाड़ी खाई में जाके दूर घिसटती भी गई है, मैंने अपनी बच्ची को देखा। मैंने कहा कैसे लोग हैं, हाईवे पे बच्ची को छोड़ दिए, इतनी तेज गाड़ियां आ रही हैं। मुझे नहीं पता कि वो मेरी बच्ची है। फिर मैंने हस्बैंड से कहा आप निकलो, बच्चे निकालो। उन्होंने निकाले मेरे बच्चे, और वो निकले, लोग आए। जब मुझे निकाला तो मुस्कान नजर नहीं आई। हाँ, मुझे निकाला। बच्ची हवा में वहाँ खड़ी हुई क्या कर रही? हाथ हिला रही थी, बाकायदा इस तरीके से खड़ी थी, और उसकी आंखों से खून निकल रहा था। उसके चेहरा बिल्कुल फ्लैट हो चुका था, नाक पूरी उसकी पिचक चुकी थी, राइट आइस इसकी ये आ चुकी थी, लेफ्ट उसकी ये हो गई थी, और होंठ उसके बिल्कुल बस एक चुन्ना सा सुराख था। और मैं नहीं समझ रही कि वो सांस कहाँ से ले रही थी। और वो 35 दिन क्या, उसने आधा घंटे का सफर कैसे किया हॉस्पिटल तक का, वो जिंदा कैसे थी। और उसने एक हाथ नहीं मारा मेरी गोद में, जरा सी नहीं कहा कि आई ओई, कुछ नहीं कहा, बस मुझे देखती रही है गोद में। और मैं उसे पहचान नहीं रही थी कि मेरी बेटी है। मैं हस्बैंड से कह रही थी मेरी बेटी नहीं है, मेरी बेटी। तुम्हारी मुस्कान है, तुम्हारी मुस्कान है, देखो गौर से देखो। ये रात में तलाश करती है अपनी बेटी को। उसके कपड़े देखे मैंने, उसके टॉप्स देखे, मुझे यकीन आया, बैंगल्स देख के, क्लिप्स देख के, मेरी बेटी है। मैंने कहा मुस्कान तुम फिक्र नहीं करना, मैं तुम्हें बचा लूंगी। ग्लासेस तक खराब नहीं हुए थे, जो ग्लासेस पहनती थी उस पर तक भी खरोश नहीं आई थी। बात ये है हजरत, मैं बहन की बात काट रही हूँ, उनका जो गम है ना, वो माँ का गम
میں نے اپنی ماں کو دیکھا ہے اپنے جوان بیٹے کو کھوتے ہوئے, میں نے دیکھا ہے. میں صرف اتنا سوال کرتی ہوں, ابھی بریک میں جو بات ہو رہی تھی, جو جن کی یہ بات کر رہی ہیں, مجھے نہیں پتا واللہ عالم کیا شک ہے, شبہ ہے, یقین ہے, صحیح ہے کہ نہیں, الزام ہے, لیکن حضرت یہ بات سچ ہے کہ جو دیکھنے والے ہوتے ہیں ان کے منہ سے ماشاءاللہ تک نہیں نکلتا. یہ میں صحیح کہہ رہی ہوں, غلط کہہ رہی ہوں؟ یہ کہہ رہی ہیں, بار بار میں کہتی تھی ماشاءاللہ تو بول دیا کرو, تو یہ بقول ان کے کہ لوگ کہتے ہیں اب اس بات میں بھی تمہیں ماشاءاللہ کہیں, کیوں؟ ایک عورت کا ہنستا بھرا ہوا گھر ہے. میری بچی چھین لی جو میری زندگی تھی, میرے بچوں سے میری صبح شروع ہوتی تھی, میری رات ختم ہوتی تھی, میں ان کو سلاتی تھی, ان کے لیے صبح باقاعدگی سے اٹھتی تھی کہ نہیں اسکول جانا ہے, بھلے میں بیمار ہوں, بھلے میں. آپ سے میں ایک بات کروں گا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں دنیاوی کوئی چیز کسی سے لے لیتا ہوں تو اس کا بدلہ اسے جنت دیتا ہوں, اور کل قیامت کے دن وہ بچی انشاءاللہ شفاعت کرے گی. وہ بچی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب جنت میں بھیجے گا تو وہ بچی, کیونکہ بہت چھوٹی تھی, معصوم تھی, بہت چھوٹی بچی تھی نا, تو وہ کل قیامت کے جنت کے باہر کھڑی ہوگی, اس وقت تک نہیں جائے گی جب تک آپ کو اور آپ کے شوہر کو جنت میں نہ لے جائے. آپ صبر کریں کہ آپ یہ سوچیں کہ وہ جنت کے اندر ہے, اور آپ یہ سوچیں کہ وہ آپ سے بہترین لوگوں میں ہے, آپ یہ سوچیں کہ وہ حوران جنت کے ساتھ ہے, آپ یہ سوچیں کہ وہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ہے, آپ اپنے دل کو تسلی دیں کہ وہ بی بی خدیجہ کے پاس ہے. جب اس طرح کا آپ سوچیں گی, آپ سب چھوڑیں اور یہ سوچیں کہ جب وہ قبر میں گئی ہوگی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہوں گے, اس بچی نے اپنے سر کی آنکھوں سے مصطفیٰ جان رحمت کو دیکھا ہوگا. جب آپ اس طرح کی باتیں سوچیں گی نا تو جو غم ہے نا آپ کو یہ ہلکا ہو جائے گا, آپ صبر کریں گی اور صبر کا بدلہ جنت ہے. میں ایک آپ کے لیے بہن کے لیے کال بھی آئی ہے, سائرہ بہن کے لیے کال بھی آئی ہے, بہت دیر سے کوئی کامران بھائی خالہ پر انتظار کر رہے ہیں. جی کامران بھائی السلام علیکم, کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام اور رحمۃ اللہ وبرکاتہ. کراچی سے ہی بات کر رہا ہوں, مجھے تھوڑی سی معلومات دینی ہے اور کچھ سوالات میرے ہیں, تو ان کے جوابات مجھے چاہیے, کچھ وظائف اس کے حوالے سے کچھ ٹیکنیکل مسئلے ہیں. ٹھیک ہے سر, آپ اپنا نام لکھوائیے, آپ کس حوالے سے پتہ کرنا چاہتے ہیں؟ مجھے اصل میں معلومات لینی ہے. ایک تو اصل میں بھی شادی ہوئی تھی میرے سالے کی. اچھا کامران بھائی, کیا آپ ہولڈ کر سکتے ہیں, ذرا سا ہولڈ کیجئے گا, آپ ذرا سا لائن پہ رہیے گا, ہم ابھی آتے ہیں. اس کے بعد میں سائرہ بہن کے حوالے سے, 2 بچے ہیں, ایک یہ بیٹی ایک بیٹا, کہہ رہی ہے میں ان کو نہیں کھونا چاہتی, میں سوتی نہیں ہوں, مجھے نیند نہیں آتی. میں سمجھ سکتی ہوں کہ جب انسان کو اپنا کوئی کھوتا ہے نا تو نئی نیندیں اڑ جاتی ہیں. حضرت اگر ایسا کوئی معاملات ہیں, میں سائرہ کا نام لے کے آپ کے پاس بھی آ رہی ہوں, آپ دونوں کے پاس, اگر ایسے کوئی معاملات ہیں تو ان کے بچوں کی زندگیاں, ان کی خوشیاں دیکھنا ان کو نصیب فرمائے اللہ پاک ان کی زندگی صحت کے ساتھ ان کے توسط سے آج پوری پاکستانی قوم کو وہ وظائف بتائیں گے کہ انشاءاللہ اس نظر بد سے محفوظ رہیں گے. آئے گا ان اللہ, بے شک آئے گا, صبر آئے گا, ان اللہ مع الصابرین پڑھتے ہیں, آئے گا, صبر آئے گا. میں ماما سے بھی یہی کہتی ہوں, ماما بھیا آپ کے نہیں تھے, آپ کو دیے گئے تھے, آپ کو دیا تھا مسکان نے, اللہ پاک نے تحفہ دیا تھا. 8 سال تک آپ نے اس تحفے کے ساتھ کھیلی, خوشیاں منائی, آپ نے اس کی محبت کی. اللہ پاک نے اپنا پھول اپنے پاس بلایا ہے تاکہ آپ کے جانے کا جنت میں ویزا کنفرم ہو جائے. اس بات کی میں اپنے دین کے اوپر مجھے اتنا ایمان ہے, یقین مانے. میری والدہ نے بھی اپنا چھوٹا سا بچہ کھویا ہے, ہم ان کو دیکھتے ہیں, اماں آپ تو جنت میں جا رہی ہیں یار, آپ تو جنت میں جا رہی ہیں. سائرہ ابھی آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہے گا. مجھے جانا آپ جنت میں جا رہی ہیں. بہت باتیں کی تھی کہ میں یہ اختلاف سے صرف آگ نہیں بھڑکتی, پھول بھی کھل اٹھتے ہیں. کہ جو اختلاف ذاتی مفاد سے بڑھ کر اجتماعی نفع کی خاطر بلند ہوتا ہے, قومیں اسی کی روشنی میں آگے بڑھا کرتی ہیں اور سر بلند ہوتی ہیں. میری قوم اس دنیا میں خوب سر بلند ہو, یہ میرا مسئلہ ہے جس کے حل کی خاطر ارباب اختیار کے ناقص فرمانوں اور فیصلوں پر میرا ہاتھ خود بخود قلم کی جانب بڑھ جاتا ہے اور میں لکھتا ہوں اختلافی نوٹ.
देखिए प्रोग्राम इख्तलाफी नोट जुम्मा से इतवार रात 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस DNA। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शबाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के जमाने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा एट 8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा एट 8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका, कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा। हुसैन नवाज की GID में 5वीं पेशी, 4.25 घंटे तक पूछगछ। कहते हैं तस्वीर लीक करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कमेटी जब भी बुलाएगी पेशी के लिए आएंगे, इलेक्शन लड़ने का इरादा नहीं। राजा जफर हक की जेर सदारत नवाज लीग की इंज़िबाती कमेटी का इजलास, निहाल हाशमी पेश हो गए। नवाज लीग की सेनेटर की इमरान खान को भी ना छोड़ने की धमकी। पाकिस्तान शंघाई ताउन तंजीम का मुस्तकिल रुकन बन गया। दहशतगर्दी और गुर्बत का मिलकर खात्मा करना होगा। वजीर आजम पाकिस्तान का खिताब, पाक भारत वज़राए आज़म में मुसाफा। आपकी तबीयत कैसी है? मोदी का मुकालमा, काफी बेहतर हूँ, नवाज शरीफ का जवाब। बरतानवी इलेक्शन में कोई जमात सादा अक्सरियत हासिल करने में नाकाम रही। कंजर्वेटिव पार्टी की 318 और लेबर पार्टी की 261 सीटें। बरतानवी वज़ीर आज़म टेरेजा मे कुछ देर में हुकूमत बनाने के लिए मलिका से मुलाकात करेंगी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की शहबाज शरीफ के बयान की शदीद मजम्मत। कहते हैं सुप्रीम कोर्ट पर जानिबदारी का इल्जाम गैर जिम्मेदाराना, तौहीन आमेज और नाकाबिले कबूल है। वजीर आला अपना बयान वापस ले। शेख रशीद के साथ हाथापाई का मामला कौमी असम्बली में पहुंच गया। खुर्शीद शाह की तकरीर के दौरान आबिद शेर अली और दीगर हुकूमती अरकान का शोर शराबा। ऑपोजिशन लीडर ने कहा, देखा जाए नूर ऐवान को पार्लियामेंट में कौन लाया। करबला के करीब मार्केट में खुदकुश धमाका, 20 अफराद शहीद, मुतादिद अफराद जख्मी।
PSL स्पॉट फिक्सिंग की तहकीकात जारी, PCB ने जवाब जमा करा दिया। नासिर जमशेद 30 जून को जवाब जमा कराएंगे। और कार्डिफ में न्यूजीलैंड की बांग्लादेश के खिलाफ बैटिंग जारी। इख्तिलाफ से सिर्फ आग नहीं भड़कती, फूल भी खिल उठते हैं कि जो इख्तिलाफ जाती मुफाद। 24 न्यूज़, बाखबर 24 घंटे। इख्तिलाफ से सिर्फ आग नहीं भड़कती, फूल भी खिल उठते हैं कि जो इख्तिलाफ जाती मुफाद से बढ़कर इज्तिमाई नफ़े की खातिर बुलंद होता है, कौमें उसी की रोशनी में आगे बढ़ा करती हैं और सर बुलंद होती हैं। मेरी कौम इस दुनिया में खूब सर बुलंद हो, ये मेरा मसला है, जिसके हल की खातिर अरबाबे इख्तियार के नाकिस फरमानों और फैसलों पर मेरा हाथ खुद ब खुद कलम की जानिब बढ़ जाता है और मैं लिखता हूँ इख्तिलाफी नोट। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट जुम्मा से इतवार रात 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस DNA। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शबाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के जमाने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा @8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा @8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका। कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा, एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास तो आपकी किसी बात पे जवाब नहीं।
जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा, इस मुल्क की तो ये स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्जों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप ने अपनी औलाद को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानियां। एक दौर ऐसा भी आएगा कि एक शख्स अपनी वज़ारत उज़्मा बचाने के लिए पूरी दुनिया में अपने बच्चों को चोर, डाकू और लुटेरा कहलवाएगा। कुलभूषण यादव, आपने इंडिया का मंकी पकड़ा हुआ है, उसको दुनिया के आगे प्रेजेंट क्यों नहीं करते? UN में 14 साल बाद पाकिस्तान के किसी सरबराह ने खड़े होकर कश्मीर पे जोर मचाया। कुलभूषण का नाम नहीं लिया। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफ राय पीर ता जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लंदन, पेरिस, US में मालो महल बना ले, स्विस बैंक के खातों में अपना माल छुपा ले। बिल्कुल सड़कों पे लाके सीटा तो मेरा नाम शबाज शरीफ नहीं। वेरी फनी। इन ऐवानों को गिरा दो। मेरे साथ हुकूमत के रिंग पिस्टन बैठ गए हुए हैं। और कोई शर्म होती है और कोई हया होती है। लैपटॉप और मेट्रो बस की जमहूरियत है। देखिए क्योंकि जमहूरियत है हर जुमे की रात 11:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। इख्तिलाफ से सिर्फ आग नहीं भड़कती, फूल भी खिल उठते हैं कि जो इख्तिलाफ ज़ाती मुफाद से बढ़कर इज्तिमाई नफ़े की खातिर बुलंद होता है, कौमें उसी की रोशनी में आगे बढ़ा करती हैं और सर बुलंद होती हैं। मेरी कौम इस दुनिया में खूब सर बुलंद हो, ये मेरा मसला है जिसके हल की खातिर अरबाबे इख्तियार के नाकिस फरमानों और फैसलों पर मेरा हाथ खुद ब रमज़ान इश्क के ट्रांसमिशन जारी, ख़वातीन और हज़रात 24 न्यूज़ HD पर। अजब कमाल है वैसे कि हम कहते हैं कि हमारी नीयतों को देखना चाहिए। हम खुद तो अपनी नीयत को समझते हैं, लेकिन हम कभी अगले के दिल में झांक कर देख नहीं सकते कि पता नहीं वो किस नीयत से हमें कह रहा है कि कितना अच्छा कर है, कितनी अच्छी फैमिली है, उसके तो 3 बच्चे हैं, वो तो बिल्कुल अपने घर में सेट है। या अल्लाह, माशाल्लाह कहने में क्या तकलीफ होती है ज़बान को। पहाड़ गिर पड़ता है। कोई बहुत अच्छा प्यारा लगे तो मैं तो अपने भाइयों, अपने बहनों और अपने जो लोग मेरे अपने होते हैं, मैं मतलब हजरत शहशाह भाई भी आ रहे होते हैं माशाल्लाह से, तो मैं कहती माशाल्लाह माशाल्लाह। आना अच्छा लगता है अपनों का। तो आप किसी को हंसता भसता किसी का घर देखकर खुश नहीं हो सकते। वाकई हसद खा जाती है। मैंने सुना भी था, देखा भी था,
लेकिन जब ब्रेक के बाद थोड़ा टाइम गुजरने के बाद फिर किसी माँ का कलेजा तड़पता हुआ देखती हूँ, फिर अजीब हो जाती हूँ, फिर अपनी वालदा का चेहरा सामने आता है, फिर अपनी सास का चेहरा सामने आता है कि वाकई यार एक माँ पर क्या गुजरती है। मेरे बहुत मोहतरम अल्लामा शहनशाह नकवी साहब यहाँ मौजूद, मेरी बहन डॉक्टर उमेराहिल यहाँ मौजूद, आपको अस्सलाम वालेकुम। दो और मेहमान इस वक्त हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं जो बहुत ही प्यारा काम कर रहे हैं, और दोनों शख्सियात अपने अपने इदारे अपने अपने सब्जेक्ट पर बेपनाह प्यारा नेकी का काम कर रहे हैं। मेरे बहुत ही मोहतरम भाई की बेगम और मेरी बहुत ही प्यारी भाभी आलिया सारिम, अस्सलाम वालेकुम भाभी। इंडस हॉस्पिटल एक ऐसा इदारा, एक ऐसा हॉस्पिटल जिसके बारे में मैंने जब भी सुना बाकमाल सुना, बहुत उम्दा सुना, सिर्फ ये जानकर कि वहाँ पे एक आम आदमी खास होता है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में आपके जाने से पहले आपके लिए लोग वेट कर रहे होते हैं, यहाँ पर वहाँ का स्टाफ एक आम आदमी के लिए वेट कर रहा होता है। इंडस हॉस्पिटल से डायरेक्टर मेडिकल सर्विसेज डॉक्टर मोहम्मद शामविल अशरफ साहब यहाँ मौजूद हैं, आपको खुशामदीद डॉक्टर साहब। सब लोग इस डिस्कशन में हैं, लेकिन वक्फे से पहले एक माँ को तड़पते हुए देखा हमने और हम बर्दाश्त नहीं कर पाए, और मैंने फ़ौरन अल्लामा सर से जिक्र किया कि आप प्लीज़, अगर मैंने उनको पूरा वाक़या बताया, शायद थोड़ा बहुत आप लोगों ने भी सुना हो, मैं उसकी आपको एक समरी बता देती हूँ। एक फैमिली हंसती खेलती, हमने आज मौजू रखा। वाकई में आज तो तलाश गुमशुदा वो नज़रें और वो लोग होने चाहिए शहनशाह भाई, जो दूसरे की खुशी में देखकर खुश हुआ करते थे। वो लोग जो ये जानते थे कि अगर कोई किसी के पास आपसे ज़्यादा बेहतर लाइफ या ज़िंदगी है तो आप रश कीजिए कि अल्लाह पाक मुझे भी ऐसी ज़िंदगी अता फरमाए। इनकी फैमिली सायरा की 3 प्यारे बच्चे, 1 साल हुआ मुस्कान को गए हुए। आपकी स्क्रीन पे ये मुस्कान है शाहजहाँ भाई, ये गाड़ी का एक्सीडेंट देखिए ये हुआ था, शीशा टूटा नहीं, दरवाज़ा खुला नहीं, कुछ ऐसी कोई चीज़ नहीं हुई जिससे वो बच्ची बाहर निकल सके। एक्सीडेंट ऐसा हुआ कि वो बच्ची गाड़ी से अचानक गायब, देखिए सब साबुत है, सब साबुत है, और वो बाहर निकलकर हवा में गई है, खड़ी हुई है और हवा में हाथ हिला रही है, जबकि उसकी आंख फूट चुकी है, उसके खून का फवारा बह रहा है, और वो बिल्कुल यूं करके अपने हाथ हवा में हिला रही है और कह रही है मुझे लगा कि कौन बच्ची अकेले माँ बाप ने छोड़ दी इस वक्त, उनको पता ही नहीं उनकी बच्ची पीछे सीट से कहाँ कब निकल कर वहाँ चली गई, नहीं पता चला। कह रही है ऐसा क्या था, मैंने बहुत लोगों से पता करवाया, ये क्या था, मुझे अपने दूसरे बच्चों की जान की परवाह है, कहीं उनको कुछ खुदा न खास्ता हो जाए। हजरत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो इनसे ताज़ियत और अल्लाह इनको सब्र अता फरमाए। एक मुसीबत, एक दिल का टुकड़ा, एक जिगर का टुकड़ा इनसे रुखसत हुआ है, अल्लाह इन्हें सब्र अता फरमाए, बर्दाश्त अता फरमाए। जहाँ तक बात इस तरह के हादसात का है कि नागहानी हादसात पर हमें गौर करना होगा कि आखिरी ज़माने में नागहानी वाक़यात होंगे, हादसात होंगे, अमवात होंगी, कसरत से होंगी, तो उसमें असबाब हैं, हमारी गुनाहें हैं, हमारी बेतवज्जोहियाँ हैं, हमारी लापरवाहियाँ हैं, वो जो अल्लाह का दीन है उससे जो हमारा ताल्लुक़ होना चाहिए उससे उस हद तक नहीं है हम। और इस तरह की चीज़ जो अनहोनी सी महसूस होती है कि गैर मामूली है, ये तो ऐसा होता नहीं है, ऐसा क्यों हो गया। तो बाज़ औक़ात रूहें मदद कर रही होती हैं और बाज़ औक़ात अजिन्ना मदद कर रहे होते हैं, मगर उसमें भी उनका एक लिमिट होती है उनकी मदद करने की, एक हद होती है उनकी मदद करने की। अगर वो उस हद से बाहर बात जा रही होती है तो फिर वो हादसा पूरा हो जाता है, यानी वो बच नहीं पाता इंसान। जी हाँ, ऐसा होता है, ऐसा होता है। कई वाक़यात हैं कि आप देखें कि या तो जो है वो एक शख्स एक फांस चुभ जाने से मर जाता है, और अगर नहीं मरता कोई तो पहाड़ी की चोटी से नीचे गिर के भी नहीं मरता। तो ये जी ये ऐसी कैफियत, जी हाँ, तो ये कोई बईद नहीं है कि इनके साथ उस वक्त में कोई रूहानी मसला रहा हो, क्योंकि रूहें आया है, हमें इस्तिफादा होता है रिवायात से और अहदीस से कि ये जो पाक रूहें हैं, ये औलिया इलाही की जो रूहें हैं, ये इस वक्त भी बहुत सी यहाँ मौजूद हैं, हमें सुन रही हैं, देख रही हैं। हमारी आंखें इस काबिल नहीं हैं, हमारे कान इस काबिल नहीं हैं कि हम उनकी बातों को सुन सकें। और यही कुछ कैफियत अजिन्ना के हवाले से भी है
تو کوئی بعید نہیں ہے کہ ان کی کچھ مدد کی گئی ہو اس وقت میں کہ وہ بچی کسی حد تک بچ جائے، لیکن وہ شاید زیادہ تھا کام اور وہ بچ نہیں سکی. ان کو صبر کی تلقین کیجئے، اور ان کے دوسرے بچوں کے لیے اور اپنی اور سب کی حفاظت کے لیے جو بہترین حدیث کی روشنی میں قانون اور قاعدہ ہے وہ ہے صدقہ. یہ اپنے بچوں کا مسلسل صدقہ نکالیں اور طہارت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ رہیں. دیکھیں یہ مسئلے جو غیر انہونے مسئلے ہندوستان میں کچھ زیادہ ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ جی ہاں، اس کی وجہ کیا ہے؟ طہارت کے وہاں مسئلے ہیں. جہاں ہمارے ہاں، میں آج کے اس پروگرام سے یہ پیغام بھی دوں گا کہ دائم الوضو رہنے کی کوشش کریں ہمارے لوگ. ہمیشہ وضو، یہاں وضو باطل ہوا، جو بھی سبب مبتلات وضو کا ہے فوراً جا کر وضو کر لیں. ضروری نہیں ہے کہ نماز کے لیے ہی وضو کریں، وہ تو واجب ہے. وہ تو واجب ہے. آپ اگر چاہتے ہیں کہ گندگیوں سے، برائیوں سے محفوظ رہیں، تو ایک یہ اولیاء الہی کے جو درگاہوں کے اور صوفیاء کرام کے اور عرفاء کے جانے والے ہیں نا، وہ اس کو زیادہ محسوس کریں گے میری بات کو. مولانا نورانی صاحب تشریف فرمائیں کہ یہ پہلی ریاضت یہ دیتے ہیں کہ دائم الوضو رہو، طہارت سے رہو ہمیشہ، تمہارے بدن کے اوپر نجاست طاری نہ ہو. اور جو بدن کو اپنے پاک رکھ سکتا ہے تو پھر دوسرے مرحلے میں وہ اپنی روح کو پاک کرتا ہے. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں گندگیوں کا، برائیوں کا خاتمہ ہو، تو ہمیں اپنے بدن کو اور پھر اس کے دوسرے مرحلے میں اپنی روح کو پاک کرنے کی ضرورت ہے، پاک رکھنے کی ضرورت ہے. بے شک رکھنے کی ضرورت ہے. آئی ایم شیور ڈاکٹر صاحب کے پاس بھی بہت زیادہ ایسے لوگ آتے ہوں گے جن کے بچوں کی ایسی حالت نازک ہوتی ہوگی کہ اس وقت ان کو بھی سمجھ نہیں آتا ہوگا کہ کس طرح کریں. ان کی اس ماں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا بھابھی کہ وہ جب گئی ہیں اس بچی کو بچپن سے چیک اپ کروائے ہیں، ٹیسٹ کروائے ہیں. ڈاکٹر صاحب کسی کوئی رپورٹ میں کچھ نہیں آیا اور سب نے کہا بچی آپ کی بالکل ہیلدی ہے. پھر کیا وجوہات ہیں؟ بہت ساری چیزیں. ہمارے پاس ایک کالر بھی ہیں، وہ میں نہیں چاہتی کسی کو انتظار کرواؤں. جی السلام علیکم. جی کون بات کر رہے ہیں؟ وعلیکم السلام. کامران خان، کافی دیر سے میں آن لائن ہوں، 1 گھنٹے سے. جی 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 بھیا فرمائیے. تھوڑی سی معلومات لینی تھی، مجھے بتانا تھا کچھ تاکہ اس حوالے سے وظائف پوچھنے تھے میں نے. ہیلو جی سن رہے ہیں آپ؟ جی سن رہے ہیں. میں ڈائری بھجوائیے گا. جی بولیے کامران بھائی. ہیلو جی بولیے، آپ کی آواز آ رہی ہے. غالباً ان کو ہماری آواز نہیں آ رہی ہے. جزاک اللہ. کامران بھائی اب دوبارہ یا تو کال کر لیجئے، آپ کی آواز ہمیں آ رہی تھی، غالباً آپ کو ہماری آواز نہیں آ رہی تھی. چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں. خواتین سب بھی حاضر ہوتے ہیں. حسد نظر بے شک ہے، لیکن ساتھ ساتھ اس سے بچنے کے اقدامات بھی ہیں. لیکن کچھ معاملات ایسے ہیں، کیونکہ میں تو ان کی طالب ہوں، مجھ کو نہیں معلوم، لیکن کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ واقعی پھر میں آپ بڑوں کی طرف رخ کرتی ہوں، کہتی ہوں یہ کیا ہو گیا ان کے ساتھ، کیسا واقعہ. مجھے نہیں پتا تھا حضرت یہ اچانک آ جائیں گی، ان کی بیٹی ان کو کہے گی کہ مجھے مایا آنٹی کے شو میں جانا ہے، اور اچانک میں حسد اور نظر کا موضوع چھیڑوں گی اور اچانک سے کہیں گی میری بیٹی حسد اور نظر کی نظر ہو گئی. ان کو اپنے بچوں کی زندگی کا خطرہ ہے. موت نہیں مانگتے، موت نہیں مانگتے. آپ کی زندگی نہیں ہے، نہ آپ کے ساتھ بیٹھی ہوئی زندگی آپ کی ہے، یہ اس رب تعالیٰ کی ہے. بس تھوڑا سا اور صبر. اللہ پاک اپنے بندے کو اس کی برداشت زیادہ نہیں دیتا. اس بات پر ایمان رکھیے. صفحے کے بعد حاضر ہوتے ہیں ہمارے ساتھ. اختلاف سے صرف آگ نہیں بھڑکتی، پھول بھی کھل اٹھتے ہیں. کہ جو اختلاف ذاتی مفاد سے بڑھ کر اجتماعی نفع کی خاطر بلند ہوتا ہے، قومیں اسی کی روشنی میں آگے بڑھا کرتی ہیں اور سر بلند ہوتی ہیں. میری قوم اس دنیا میں خوب سر بلند ہو، یہ میرا مسئلہ ہے، جس کے حل کی خاطر ارباب اختیار کے ناقص فرمانوں اور فیصلوں پر میرا ہاتھ خود بخود قلم کی جانب بڑھ جاتا ہے اور میں لکھتا ہوں اختلافی نوٹ. دیکھیے پروگرام اختلافی نوٹ جمعہ سے اتوار رات 7:03 پر
सिर्फ 24 न्यूज HD। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस DNA। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शवाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के ज़माने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी ज़िंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा @8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा @8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका। कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास बात की किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा। इस मुल्क की तो ये स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्जों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप ने अपनी औलाद को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानियां। एक दौर ऐसा भी आएगा कि एक शख्स अपनी वजारत उज़्मा बचाने के लिए पूरी दुनिया
दुनिया में अपने बच्चों को चोर, डाकू और लुटेरा कहलवाएगा। कुलभूषण यादव, आपने इंडिया का मंकी पकड़ा हुआ है तो उसको दुनिया के आगे प्रेजेंट क्यों नहीं करते? UN में 14 साल बाद पाकिस्तान के किसी सरबराह ने खड़े होकर कश्मीर पे जोर मचाया। कुलभूषण का नाम नहीं लिया। देखिए प्रोग्राम इख्तलाफ राय पीर ता जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लंदन, पेरिस, US में मालो महल बना ले, स्विस बैंक के खातों में अपना माल छुपा ले। इनको सड़कों पे ला घसीटा तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं। वेरी फनी। इन ऐवानों को गिरा दो। मेरे साथ हुकूमत के रिंग पे स्टैंड बैठ गए हुए हैं। और कोई शर्म होती है और कोई हया होती है। लैपटॉप और मेट्रो बस की जमहूरियत है। अभी हम यहाँ प्रोग्राम के आगाज़ में एक दूसरे को दूसरे जुमे की मुबारकबाद दे रहे थे और यहाँ पर हमने करबला के करीब ब्लास्ट की खबर सुनी। वक्फे में 20 से ज़ायद लोग शहीद हो चुके हैं। ये अल्लाह पाक उम्मत मुस्लिमा पर भीख मांगते हैं, तेरी बारगाह में रहम फरमा दे इन जालिमों को। परवरदिगार, मुझे नहीं मालूम, ये जब जुमे के दिन एक तो वैसी बहन का गम सुन के मैं और उदास हो गई। ये खबर सुनकर मेरा और दिल डूब गया मेरा। मुझे नहीं मालूम आप जैसे नेक लोग किस तरीके से, हजरत का भी ट्रस्ट है, आप लोग किस तरीके से हैंडल करते हैं। वो इमोशंस, वो हिम्मत कहाँ से आती है कि मेरी हिम्मत कभी कभी टूट जाती है। क्या बोलूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा इस वक्त। आप लोगों को भी गालिबन जी हजरत, मैं अभी वक्फे में ही ये बात मुझे पता चली। देखिए, अभी 2-3 दिन पहले तो हजरत आयतुल्लाह खुमैनी के मज़ार पर तेहरान में धमाका हुआ, पार्लियामेंट पे वहाँ धमाका हुआ। ये एक आलमी सियासत का हिस्सा है। इराक़ से जो दहशतगर्द जमात ख़ुद हमारे अमरीका बहादुर ने बनाई थी, वो अब क्योंकि निकल रही है, ख़त्म हो रही है, तो उसका रिएक्शन है, उसका रद्द अमल है। और इस्लामी ममालिक और मुसलमान कौम को, मिल्लत को आंखें खुली रखनी चाहिए। ये जो एक बहादुर है, जो एक बहुत बड़ी ताकत है, इसके मौजूदा हुकूमत असलहे की कंपनियों ने इन्हें जितवाया है, तो ये मुसलमानों से कारोबार करेंगे असलहे का। मुसलमानों को समझना चाहिए इस बात पर कि ये हमारा इख्तलाफ है। जैसे सगे भाइयों में सियासी इख्तलाफात होते हैं, सगे दो भाई एक पीपल्स पार्टी में होता है, एक नून लीग में होता है, ऐसे ही सगे दो भाई, कोई बरेलवी है, कोई देवबंदी है, कोई शिया है, हम भाई हैं ना सब, ठीक है। ये हमारे स्कूलों का फ़र्क है, ये हमारे यहाँ फैकल्टीज़ का फ़र्क है। जैसे एक यूनिवर्सिटी के अंदर एक फैकल्टी है जी फ़िक़्ह हनफिया, एक बरेलवियत, एक तशिया, एक मिसाल के तौर पर देवबंदियत। ये एक यूनिवर्सिटी इस्लामिक यूनिवर्सिटी है, उसकी फैकल्टियाँ हैं, उसके ये शोबे हैं, ठीक है। और एक ही इदारे के अंदर रहकर हम मुख्तलिफ उलूम को, मुख्तलिफ सोचों को, मुख्तलिफ तरीक़ाकार को हम पढ़ रहे होते हैं, उस पर हम महारत हासिल कर रहे होते हैं। हमारे एक बहुत बुजुर्ग आलिम थे, अहले सुन्नत में भी ऐसे बहुत बुजुर्ग गुजरे हैं, जो 5 फ़िक़ों पर तसल्लुत रखते थे। लिहाजा ये मसला सुन्नी शिया का ही नहीं, मैं जो असल बात करना चाहता हूँ, ये जो दहशतगर्दी है, ये दहशतगर्दी है, ये फ़िरका वारियत नहीं है। आप देखें हम कितने प्यार से बैठे हैं, मैं इनके पीछे कहीं मसला होगा मैं इनके पीछे नमाज पढ़ूंगा, कोई मुझे टेंशन नहीं है, ठीक है। हम एक दूसरे के पीछे नमाजें पढ़ रहे हैं, हम एक दूसरे के यहाँ, हमारी रिश्तेदारियां। मेरे ननियाल में चंद घराने थे जो अहले सुन्नत से थे। टंडो आदम में मेरी वालदा के मामू का मज़ार है, वो बरेलवी एक सूफी थे, ठीक है। हमारे यहाँ तो ये फ़र्क नहीं है, बर्रे सगीर में खासतौर पर, आलम इस्लाम में नहीं है। ये एक बाकायदा आलमी सियासत है और उसको मजहब का रंग देने की कोशिश की जाती है। ये मजहबी मसला है ही नहीं, ये सियासी मसला है खालिसतन। ये जो इराक़ की आप खबर दे रही हैं, इंतहाई दिलखराश वाक़या, यकीनन इन अय्याम के अंदर माह मुबारक रमज़ान है, मक्कतुल मुकर्रमा में, मदीने में, नजफ़ में, करबला में, मकामात मुक़द्दसा पे लोग जाते हैं ज़्यादा सवाब लेने के लिए, तो वहाँ रश होता है।
تو یہ اب اور میں آپ سے کہ توسط سے ایک بشارت دوں کہ انشاءاللہ مسلمانوں کی ہوشیاری میں اضافہ ہوا ہے, مسلمانوں کی سمجھ میں اضافہ ہوا ہے, شعور بڑھا ہے. انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے کہ جو مسلمانوں کو اذیت پہنچانے والے لوگ ہیں, جو دہشت گرد ہیں, ان کا خاتمہ ہوگا, اسلامی دنیا کا بول بالا ہوگا. مگر بس دعا یہ کریں ماہ رمضان میں کہ مسلمان ممالک کے حکمران مسلمان ہو جائیں. آمین ثم کیا آمین. بات ہے. قیل لهم لا تفسدوا فی الارض, اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فتنہ و فساد نہ کرو, قتل و غارت نہ کرو, تو ان کا جملہ کیا ہوتا ہے؟ اور آج کے لوگوں کا بھی یہی جملہ ہے, نحن مصلحون, ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. اور رب ذوالجلال ان کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے کہ یہ فسادی ہیں اور فساد کر لا يحب المفسدین, اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا. قرآن مجید فرقان حمید میں رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کچھ لوگوں سے اللہ جن کو سخت ناپسند کرتا ہے, ان میں سے وہ جو ایک قتل کرتے ہیں, ایک وہ جو زمین میں فتنہ و فساد کرتے ہیں, اور جو ظلم برپا کرتے ہیں. الحمدللہ الاحسانی تمام مسلمان اس بات کو سمجھتے ہیں کہ یہ انٹرنیشنل گیم تھیوری ہے, کیونکہ ایک بہت بڑی جو سپر پاور ہے وہ کرائسس کے درجے میں آ رہی ہے, اسے اپنے جو سب سے بڑی پروڈکٹ ہے وہ بیچنی ہے. اور وہ کن کو بیچے؟ تو پھر وہ انہی لوگوں کو بیچ رہا کہ آپس میں لڑیں, لیکن انشاءاللہ مسلمان نہیں لڑیں گے. جو آپس میں لڑیں وہی تباہ برباد ہوں گے. ایک بات میں اور کہنا چاہوں گا مایا بہن, وہ جو بہن کے حوالے سے بات چل رہی تھی, ہاں اس میں کچھ نکات میرے ذہن میں آتے ہیں. اچھا, ایک تو یہ کہ آپ ان سے بات کرنا چاہتے ہیں, میں ان کو مائک بھجواؤں کیا, کچھ پوچھنا ہے؟ میں ان کو ایسے ہی بتاؤں گا. ٹھیک ہے. دیکھیے جنات کبھی کبھی بہت تنگ کرتے ہیں, اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ پاکی نہ پاکی کا, جس طرح شہنشاہ بھائی نے بتایا, تو یہ مسئلہ ہوتا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ کچھ عملیات کرتے ہیں جس کی وجہ سے خبیث جنات آتے ہیں. جب وہ خبیث جنات آتے ہیں تو ان کی ایک خاص بدبو بھی ہوتی ہے. آپ کے گھر میں کبھی بدبو وغیرہ محسوس ہوتی تھی آپ کو کوئی بہت بری؟ میں اس لیے گئی تھی مائک ان کو دینا ہوگا. جی جی بھائی, کبھی آپ کو بہت زیادہ گھر کے اندر اچانک سی بدبو کبھی محسوس ہوتی ہے؟ اسمیل بھی فیل ہوتی ہے اکثر, کبھی کبھی, ہر وقت نہیں, ہر وقت نہیں, کبھی کبھی محسوس ہوتی ہے. کبھی بہت کافی عرصے میں جا کے, کیونکہ میں ہر وقت گھر کو پاک بہت رکھتی ہوں, کبھی کبھی نماز پڑھتی ہوں, ہر وقت نہیں کرتی, وضو بھی نہیں. دیکھیں کبھی کبھی خبیث جنات گھر کے اندر آتے ہیں تو ایک بہت خاص, ایک عجیب سی گندگی سی, بہت بیڈ اسمیل جس کو آپ بتا نہیں سکتے, وہ اس طرح کی محسوس ہوتی ہے. تو وہ خبیث جنات کی وہ آمد ہوتی ہے. اب اس خبیث جنات کو روکے کیسے ہیں؟ تو پھر ہمیں رجوع الی رسول کرنا ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاہ فرماتے ہیں جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے کہ وہاں خبیث جنات نہیں آتے. ایک بات, وہ گھر کبھی ویران نہیں ہوتا, اس گھر میں کبھی پریشانی نہیں آتی, اس طرح کی ناگہانی آفات نہیں آتی. تو آپ اپنے گھر میں سورہ بقرہ پڑھیں. پوری سورہ بقرہ نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم ایک رکوع پڑھیں. اچھا, اب جن کے ساتھ اس طرح کے معاملات کیے ہوئے ہیں, کوئی یہ سمجھتا ہے کہ نظر بد, دیکھیں نظر بد تو ہر کسی کو لگ سکتی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا العین حق, کما قال علیہ الصلوۃ والسلام, نظر کا لگنا حق ہے. نظر اچھی بھی لگتی ہے, نظر بری بھی ہوتی ہے. نظر جو بری ہوتی ہے وہ نیگیٹیوٹی میں آتی ہے, وہ ایول آئیز ہوتی ہے. جب ایول آئیز جاتی ہیں تو ایک نیگیٹو جو ہے نا انرجی پروڈیوس کرتا ہے بندہ, جس کی وجہ سے وہ پوری انوائرمنٹ نیگیٹو ہو جاتی ہے. اس نیگیٹو کو پازیٹیو کس طرح کرنا ہوگا, اس کے لیے آپ کو خود محنت کرنا پڑے گی, آپ کو باوضو رہنا پڑے گا فرسٹ آف آل. سیکنڈ یہ کہ آپ کو سورہ کوثر پڑھنی ہوگی. میرے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ بیٹا جب کسی کے ساتھ اس طرح کے معاملات ہوں اور گھر کے معاملات بہت زیادہ خرابی ہوں تو ان سے کہو کہ وہ سورہ کوثر 3 مرتبہ پڑھ کر گھر سے نکلے, اور جب گھر کے اندر داخل ہو رہے ہوں تو پھر سورہ کوثر پڑھ کے 3 مرتبہ اندر داخل بھی ہوں اور نکلے بھی. تو میں نے پوچھا ابا جان اس سے کیا ہوگا؟ کہا کہ جو باہر کی چیزیں ہوں گی وہ باہر رک جائیں گی. اچھا ماشاءاللہ, جو باہر کی چیزیں ہوں گی وہ باہر ہی ختم ہو جائیں گی. دوسری بات یہ کہ جب آپ سورہ کوثر کی کثرت سے تلاوت کرتے رہیں گے تو اس کے ساتھ جو فرشتے ہوتے ہیں, اس کے ساتھ کچھ جنات بھی ہوتے ہیں, وہ آپ کے ساتھ ہوں گے, وہ آپ کی ہیلپ آؤٹ کرتے رہیں گے. جزاک اللہ خیر. میں سب کی طرف جاؤں گی. آغا بھائی آپ دونوں کی طرف میں آتی ہوں. ڈاکٹر شامبل آئے ہیں کیونکہ وہ کچھ دیر کے لیے آئے ہیں, آپ لوگ کی اجازت اگر ہو تو میں ان سے 2 منٹ بات کر لوں. ڈاکٹر شامبل آپ کے آنے کا بہت شکریہ. آپ جس کام میں مصروف ہیں, میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گی کیونکہ ظاہر ہے مجھے معلوم ہے اور ہم ڈاکٹرز کو بھی معلوم ہے, آپ لوگوں کو سب کو معلوم ہے کہ انڈس ہاسپٹل کتنا خدمت خلق میں مصروف ہے اس وقت. وہاں پر کیا یہ سچ بات ہے کہ عام آدمی واقعی خاص ہو جاتا ہے ڈاکٹر صاحب؟ جی ہاں, انڈس ہاسپٹل کی خاص بات یہ ہے کہ یہ ایک کیش لیس ہاسپٹل ہے جہاں کوئی کیش کاؤنٹر نہیں ہے. یعنی وہ کسی بھی مرض کے لیے, کسی بھی بیماری کے لیے ہمارے پاس آتا ہے
तो उसका मुकम्मल फ्री चेकअप और मुकम्मल फ्री इलाज होता है। इस हॉस्पिटल की जो है वो दूसरी अहम बात यह है कि ये टोटली कंप्यूटराइज या पेपरलेस हॉस्पिटल है। ये पाकिस्तान का पहला अस्पताल था जो मुकम्मल तौर पर पेपरलेस शुरू हुआ, यानी तमाम डेटा तमाम चीज़ें कंप्यूटराइज होती हैं। तीसरी हमारी जो सबसे अहम बात यह है कि हम पूरी इज़्ज़त नफ्स के साथ गरीबों और बिला इम्तियाज़ के वो गरीब है या अमीर है, हम एक ही तरह से सबका इलाज करते हैं। और ये इलाज जो है वो हर किस्म के अमराज का होता है। ये सिर्फ ये नहीं है कि हम सिर्फ खांसी नज़ला या जो है वो छोटी मोटी बीमारियों का इलाज करते हैं, बल्कि हमारे यहाँ कार्डियक सर्जरी भी होती है, एंजियोप्लास्टी भी होती है, नी रिप्लेसमेंट जो कि एक आम कमर्शियल हॉस्पिटल के अंदर 8 से 12 लाख रुपए लगते हैं, उनका भी मुकम्मल फ्री इलाज या नी रिप्लेसमेंट होती है। क्या बात है। इसी तरह अब जो है वो इंडस हॉस्पिटल के अंदर बच्चों के कैंसर का एक यूनिट है जो कि पाकिस्तान में बच्चों के कैंसर का सबसे बड़ा यूनिट है, और यहाँ बच्चों के कैंसर का मुकम्मल फ्री इलाज किया जाता है। और जबकि आपको पता हो शायद कि एक कैंसर के इलाज में 2 लाख से 20 लाख रुपए तक खर्च होते हैं। जी जी, तो ये जो है इंडस हॉस्पिटल के अंदर, और ये तमाम इलाज जो है वो मेयारी इलाज होता है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक होता है। अच्छा माशाल्लाह सर, मैं सिर्फ इतना कह सकती हूँ कि चंद मिनट या 1 या 2 घंटे या इस तरह का शो बहुत कम है। इंडस ने जितने लोगों की ज़िंदगियाँ बदली हैं और जो सिस्टम है, मैं आपको अपनी पूरी टीम और अपने बड़ों की और उलमा कराम की तरफ से बहुत मुबारकबाद पेश करती हूँ इस बात पे कि आप जो काम कर रहे हैं और आपको बहुत हिम्मत दे, बहुत ताकत दे। जहाँ जहाँ जैसे भी हमारी ज़रूरत हो हम हाजिर हैं। आप चाहें, अगर आपको बहुत मसरूफ़ नहीं है तो तशरीफ़ रखिए, अगर नहीं होंगे तो मैं आपसे ज़रूर मैं सिर्फ एक पैगाम देना चाहूँगा कि ये तमाम इलाज लोगों की मदद से ही किया जाता है, जाहिर है। और ये बड़ी अच्छी और अजीम बात है कि हमारे अखराजात का 90% जो तमाम डोनेशन, ज़कात, करात, ये आम लोगों से ही आता है। तो हमारी जी जी, और पाकिस्तान से ही लिया आता है। तो लिहाजा हमारी दरख्वास्त होगी कि जो है वो इंडस हॉस्पिटल अपनी और फैसिलिटी को बढ़ाना चाहता है और लोगों को फ़ायदा पहुंचाना चाहता है। तो इस रमज़ान में आप अपने लोगों के लिए अपने लोगों के लिए जो पैसे ना होने की वजह से उधर इलाज नहीं करा सकते, वो उस खाले खैर में हिस्सा लें। डेफिनेटली, नहीं बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपकी अमानत हो गई है, आप फिक्र नहीं करें। इंशाल्लाह इंडस हॉस्पिटल का आज पूरे दिन हम टिकट चलाएंगे और अल्लाह पाक चाहे अगर 1 रुपया भी कहीं से आया ना तो मैं समझूंगी हम लोग कामयाब हो गए। जज़ाकल्लाह खैर, आपके आने का बेहद शुक्रिया डॉक्टर साहब, जज़ाकल्लाह खैर। ख़वातीन हज़रात, मेरे उलमा कराम यहाँ मौजूद हैं। नज़र हसद और आज आलिया भाभी किस बेटी को लेकर आई हैं, आगा भाई भी सायरा बहन के हवाले से। हमें तो नहीं पता कब कौन कहाँ किस इंसान का परवरदिगार हमें वसीला बनाते हैं, ये हमें नहीं मालूम। प्रोग्राम को आगे लेके चलते हैं, हम वापस आते हैं रमज़ान इख्तिलाफ से सिर्फ आग नहीं भड़कती, फूल भी खिल उठते हैं कि जो इख्तिलाफ जाती मुफाद से बढ़कर इज्तिमाई नफ़े की खातिर बुलंद होता है, कौमें उसी की रोशनी में आगे बढ़ा करती हैं और सर बुलंद होती हैं। मेरी कौम इस दुनिया में खूब सर बुलंद हो, ये मेरा मसला है जिसके हल की खातिर अरबाबे इख्तियार के नाकिस फरमानों और फैसलों पर मेरा हाथ खुद ब खुद कलम की जानिब बढ़ जाता है और मैं लिखता हूँ इख्तिलाफी नोट। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट जुम्मा से इतवार रात 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी।
अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस DNA। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शबाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के ज़माने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम जहरा @8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा @8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका। कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास बात की किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा, इस मुल्क की तो ये स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्जों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप ने अपनी औलाद को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानियां। एक दौर ऐसा भी आएगा कि एक शख्स अपनी वज़ारत उज़्मा बचाने के लिए पूरी दुनिया में अपने बच्चों को चोर, डाकू और लुटेरा कहलवाएगा। कुलभूषण यादव, आपने इंडिया का मंकी पकड़ा हुआ है तो उसको दुनिया के आगे प्रेजेंट क्यों नहीं करते? UN में 14 साल बाद पाकिस्तान के किसी सरबराह ने खड़े होकर कश्मीर पे जोर मचाया। कुलभूषण का नाम नहीं लिया। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफ राय पीर ता जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर।
सड़कों पे ना घसीटा तो मेरा नाम शबाज शरीफ नहीं। मेरी को गिरा दो। हुकूमत के रिंग पिस्टन बैठ गए हुए हैं। और कोई शर्म होती है और कोई हया होती है। और मेट्रो बस की जमहूरियत देखिए क्योंकि जमहूरियत है हर जुमे की रात 11:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। देखने वालों को सुनने वालों को एक बार फिर हम करते हैं खुशामदीद। आप देख रहे हैं रमज़ान इश्क है नशरियात बराह रास्त 24 न्यूज़ HD पर। हमारे उलमा कराम हमारे साथ मौजूद, डॉक्टर मेराहील, आलिया भाभी हमारे साथ आज हैं सानम बनी वेलफेयर ट्रस्ट से, और हमारी उस बहन जिसने अपनी 8 साल की बच्ची को, शेफ़ मदिहा भी हमारी इस वक्त मौजूद हैं, जो कि आज प्रोग्राम का आगाज़ इतना अफसरदा हो गया कि हमारी सबके चेहरे एकदम से ना गमज़दा हो गए। तो हम अपनी नॉर्मल चीज़ों को बात ही नहीं कर सके, क्योंकि देखिए बटन तो है नहीं कि आपने ऑफ़ किया ऑन किया और आपके इमोशंस स्विच कर गए, एकदम से इमोशनल से आप एकदम से प्रैक्टिकल हो जाएं। कम से कम मैं नहीं। और बड़ा मुश्किल काम है कि एक मौजू एक दर्द से निकलकर किसी और के दर्द में फिर शामिल होना और उसको बयान करना, कभी कभी अपनी जॉब बहुत डिफ़िकल्ट लगने लगती है। सही बात। मतलब मुझे लगता है कभी कभी शायद मैं मशीन बन गई हूँ। ये नेकी का ज़रिया है, अल्लाह ताला ने आपको चुना है इस काम के लिए। भाभी अब ये माँ आपके साथ बैठी हैं। पहले तो आप अपने मूड को यूँ अच्छा कर सकती हैं कि मुबारक हो वो बच्ची जो एक हमारे पास आई थी, जो मेरे पास नकाब करती थी, वो आज अपने बाप के साथ घर चली गई। अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा नहीं है कि जो बात हम करते हैं उसका असर नहीं होता, होता है असर। हर दिल पे नहीं होता, लेकिन कहीं ना कहीं मैसेज पहुंचता जरूर है। शुक्र है मेरे रब का, शुक्र है मेरे रब का, शुक्र है मेरे रब का, अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये माँ आपके साथ, अब माँ को लाए हैं। हमने बेटी की बात की, हमने माँ बाप की जिम्मेदारी की बात की कि कैसे माँ बाप साथ जुड़ें और औलाद को पालें। अब मैं उस माँ को अपने साथ लाई हूँ जिसने सिंगल पेरेंट के तौर पर जवानी में जो औरत बेवा हो गई और शराफत के साथ और मेहनत के साथ जिसने अपने बच्चों को पाला। 3 इनकी बेटियां, गो के बेटियां बुरी नहीं हैं, लेकिन वसाइल और फिर माँ कैसे जा सकती है बेटी के घर, जो हमारे के कॉन्सेप्ट है, इस हवाले से हम बात करेंगे। और तकलीफ जो है वो ये माँ खुद बताएं ताकि इनका अपना ही दिल हल्का हो जाए। अस्सलाम वालेकुम। बेटा, आपकी खैर खुदा करीम से नेक चाहती हूँ। अच्छा, मैं भी आपकी खैरियत नेक मतलब चाहती हूँ। खुश रहिए। 3 बेटियां हैं जैसे आलिया ने बताया। 3 बेटियां आपकी? जी। अच्छा। एक बेवा है, एक का शोहर साथ नहीं है, अच्छा। और एक का शोहर घर से ही नहीं निकलता, वो बस बेटी के आगे पीछे घूमता रहता है मेरी। तो बच्चे काम करते हैं, जैसे कैसे गुजारा चल रहा है। अब मैं खुद जाकर के उनके घर इसलिए नहीं रही, मैं इनका बेटी कहेंगी कि हमारी माँ को कुछ नजर नहीं आता क्या? करीब कर लीजिएगा, कोई वॉलंटियर यहाँ आ जाए तो करीब माइक पकड़ ले। नजर नहीं आता हमारी माँ को। अच्छा। कि हमारे घर में बोझ बन गई हैं आके। वो खुद भी शर्म आती है मुझे जाते हुए उनके घर के अंदर। जी। तो मैं नहीं जा पाती उनके घर। इधर विधर में रहती भी रही। करीब कर। तो 2 साल पहले मैं आई थी इनके यहाँ ऑफिस में। अच्छा। फिर मैं चली गई, लोगों के मुँह से 2 साल पहले। हाँ। अच्छा। कुछ सुना ना मैंने। अच्छा। लोगों के खिलाफ, तो मैं डर गई। अच्छा। तो मैं वापस चली गई, भाग गई, बात करके कार्ड लेके इनके ऑफिस से। नहीं आई मैं। ठीक है। हाँ, फिर मैं इसी तरह इधर उधर अपना टाइम पास करती रही। अब आती ही ना मैं वहाँ पे अजीज रिश्तेदारों के पास भी गई। जी जी। मिलने जुलने वालों के पास उनको मैंने बताया, सुनाया सब बात। किसी ने कुछ जवाब दिया, किसी ने कुछ नहीं दिया, मुंह बना लिए। किसी ने 8 दिन 5 दिन घर में रखा और फिर कह दिया कि अब तुम चली जाओ। मुख्तलिफ। हाँ हाँ हाँ। फिर उसके बाद में मैंने बहुत अपने दिमाग पे जोर डाला कि अब मैं अकेली हूँ, जो भी मेरी किस्मत में जिस तरह भी मेरी मौत है, सही है, आखिरी वक्त है,
जितने दिन की जिंदगी है इतने दिन मैं जाके अब ऑफिस में उनके वहाँ पर ही रहकर देखूं कि मेरी वहाँ क्या होता है, किस तरह मेरे को मौत आती है, मेरे नसीब में क्या लिखा हुआ है। अल्लाह रहम करेगा। मगर मैं सदके जाऊँ इन आलिया के और ऑफिस वालों के जिन्होंने मुझे वहाँ इजाज़त दी रहने की, मुझसे पूछा। हाँ। अच्छा। फिर जब मैं सेक्टर में आई ना तो मुझे ये तो अरमान हुआ था कि मैं आलिया से मिलूं, मगर वहाँ सब इन्हें भाभी भाभी कहते हैं। अब सब भाभी भाभी कह तो रहे थे, लेकिन मेरी समझ में नहीं आया था कि भाभी हैं कौन। अच्छा। ये आके चली गई, मेरे को वहाँ जगह दे दी गई रहने के लिए, मैं रहने लगी। अब मैं लोगों की बातें सुन सुन के मैं सोच रही, अल्लाह कब आएंगी वो आलिया भाभी जो मैं उन्हें देखूं, कब आएंगी वो आलिया भाभी। इसी अरमान में थी। फिर ये 2-3 दिन के बाद वहाँ आई, किसी काम में मसरूफ़ हो गई थी। 2-3 दिन के बाद आई तो मैंने सबसे पहले इनका रास्ता रोका, इनसे बातचीत की, दुआ सलाम किया, आ गए वापस। मैंने इनको उसी दिन बेनज़ीर का लक़ब दे दिया। मैंने कहा भाई आप मेरे लिए बेनज़ीर हैं। 2 बेटियाँ हैं, एक बेवा है। बच्चियों के पास वसाइल नहीं है। वसाइल नहीं है। हाँ। अच्छा। ज़्यादा है क्योंकि किराए पे रहते हैं, गुर्बत का मामला। अगर इनकी बातों से अंदाज़ा करें तो ये बात समझ में आती है कि बेटियों के साथ गुर्बत के मामलात हैं, उनके वसाइल बहुत ज़्यादा। जी अगर वहाँ रहेंगी तो दामादों पर बोझ बनेंगी। दामाद भी बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है माली हवाले से। इन्होंने खुद कदम उठाया। ये वाला केस तो खालिसतन सारिम बरनी साहब और उनकी अहलिया उनकी खालिसतन खिदमत है, इस माना में कि ये केस कहीं और जा नहीं सकते, इन्हीं को संभालने। यानी सारिम साहब यहाँ आकर के रही इनके पास, लिहाजा हमें इस इदारे की तकमीत ये कहना चाहती हूँ, मुझे इतनी तमन्ना किसी बात की भी नहीं है कि मैं यहाँ क्यों रह रही हूँ, बच्चे क्यों छूट गए या कोई ख़ानदान वाले क्यों छूट गए, मुझे किसी की तमन्ना नहीं है। सिर्फ मेरे को ये कहना है आपसे कि इनकी इतनी हेल्प करी जाए। और मैं उनसे भी कहती हूँ, भाई से भी, बच्चों से, और उनसे भी कहना चाहती हूँ जो यहाँ के सदर हैं, उनसे भी कहना चाहती हूँ। सदर से मत कहें। आलिया साहब नहीं, उनसे तो पहले कहना चाहिए मुझे, उनसे तो पहले कहना चाहिए। हमारे जैसे गरीब गुरबा ढके छुपे हुए रहते, मौत के मुंह में पड़े रहते और कोई उनको देखने वाला नहीं होता। ऊपर वाले सब इधर करके उनका नाम बदनाम कर देते हैं गरीबों का। इतना वो मिला कुछ नहीं, मगर कुछ कह रहे थे, शाबाशी देती हूँ मैंने। जी एक सेकंड मामा। ये जो देखें, 2 तरह के हमारे माशरे में 2 तरह के हम इन मसाइल को जो इंसानी अक़दार के फ़ुक़दान के मसाइल हैं, ये माँ बाप के साथ ये सलूक और ये जो रवैये हैं, इसको हम तकसीम करेंगे 2 हिस्सों में। एक तो ये कि ज़्यादतियाँ हैं, बदतमीज़ियाँ हैं, नाहंजारियाँ हैं, ना जो है वो बेतवज्जोहियाँ नहीं, बल्कि जराइम है औलाद के। औलाद कसूरवार है और क़यामत में नहीं, इसी दुनिया में सामने आता है। माँ बाप के साथ बेहुरमती, बेअदबी इसी दुनिया में सामने आती है। एक वो किस्से हैं, वो वाक़यात हैं जो आप देखते हैं इन इदारों में हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं कि ये वाक़ई अगर अपनी बेटियों, बेटा नहीं है इनके यहाँ, बेटियों के पास रहेंगी तो वहाँ पर खुद वसाइल नहीं है, ठीक है, ये वहाँ रोज़ाना किसी न किसी जहनी तनाव का शिकार होंगे। तो कोई इदारे हमारे ऐसे होने चाहिए। बहस ये है, हमारे पाकिस्तान में ऐसे इदारे होने चाहिए जो हैं मगर कम हैं, तादाद में भी कम है, उनके पास वसाइल भी कम है। जैसे हमारी मोहतरमा जो है सारिम साहब की अहलिया, इनका जो इदारा है इसको और वसी होना चाहिए। 1 कैंपस नहीं, 2, 3, 4, 5 कैंपस बनने चाहिए। मुख्तलिफ शहरों में इनका काम होना चाहिए। इसी कराची में, कराची पूरा मुल्क है, इसमें इनके पास वसाइल जितने बढ़ेंगे, इतने ऐसे केस बहुत हैं। बिल्कुल। तो उन्हें जीने का चंद साल रह गए, अल्लाह इनको जिंदगी दे। जो बदन का तकाजा है, ये 70 साल की हो गई हैं, 80 साल की हो गई हैं, 5 साल 6 साल 10 साल बाद अल्लाह उम्र अता करे। लेकिन बहरहाल हमारे ऐसे इदारों की ज़रूरत है। हमारे इन इदारों को मैं गुजारिश करूँगा तमाम आवाम से भी, लोगों से भी, हुक्मरानों को तो हल फीकुम रजुलुन रशीद, क्या तुम्हारे यहाँ कोई समझदार है? हमारे यहाँ तो हुक्मरान कहाँ हैं? एक तलाश गुमशुदा हुक्मरानों का भी तो कीजिए आप, कि इस मुल्क में कोई हाकिम है इस वक्त, इस मुल्क में, ये भी तो एक तलाश गुमशुदा कीजिए। सही कह रहे हैं जी। मुझे बहुत ज़रूरी न्यूज़ ब्रेक पे जाना है, लेकिन आप लोग की इजाज़त से चाहूँगी मैं
صحیح کہہ رہے ہیں شہنشاہ بھائی کہ واقعی میں کچھ ایسا بھی ہونا چاہیے. میں اس وقفے میں ضرور آپ سے پوچھتی ہوں, وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا.